Hello, welcome and namaste. In this episode of Career Journey podcast, you will meet Vishal. विशाल एंड मैं एक दूसरे को ऑलमोस्ट एक साल हो गया जानते हुए एक ट्विटर पे पोस्ट था जिसमें पीपल वर टॉकिंग अबाउट क्लाउड एंड काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रहा था वहाँ पर एंड विशाल ने बोला कि यार इतना कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, एक वीक में कर सकते हो. एंड देन मैंने मैसेज किया एंड उसके बाद विशाल और मैंने एक गाइड बनाया इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसमें प्लान भी है, रिसोर्स भी है, सब कुछ है और उसको फ्री में सबको दिया हमने कि आप एक हफ्ते के अंदर AWS सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो. विशाल HCL में काम करते हैं. इनकी जो करियर जर्नी है बाकी लोगों से कम्प्लीटली अलग है. 12th करके ये SCL ज्वाइन किए हैं और उसके बाद अब साथ में कॉलेज कर रहे हैं और उसमें भी कॉलेज SCL इनको 70% कॉलेज की फीस पे करती है. कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का बाद में SCL इनको हायर किया है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देन उसके बाद में इन्होंने पढ़ाई अपना बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो बैचलर डिग्री है वो शुरू किया एंड SCL उनको 70% फीस पे भी कर रहा है, स्पॉन्सर भी कर रहा है. सो विद दैट आई वांट टू हैंड ओवर माइक टू विशाल. विशाल प्लीज़ अपने बारे में बताओ एंड देन कैसा रहता है आपका एंड डे एंड वीक Thank you कैसा for चलता है inviting आपका? me, Vinod. My name is Vishal and I'm based out of India, Lucknow. And a typical day in my job day is like first I wake up late and then I go to office and then I figure out, okay, these are my tasks. And then I devise arrange them and like I do the toughest task in the first half and then I relax and do the smallest ones and they take around almost my day and after that I go home and घर पहुंच के फिर खाने के लिए क्या बनाना ये डिसाइड करना एंड खाना बना के फिर आराम से फ्रेंड्स के साथ चिल करके देन दैट्स ऑल. लेट्स सी कि ये जो जॉब है वो कैसे मिली, या उस पे बात करते हैं. तो अभी जैसे जब आपने 12th पास किया उसके बाद ये जॉब आपने लिया, कैसे मिली आपको ये जॉब? Okay, पहले in after my 12th, I was preparing for ITG JEE as everyone does in India, and then I was just preparing, and then I let you get to know that one of my friend is on HCL. So I was like, it's an IT company. How she got a job in IT company? Then she referred, okay, this is how I got a job. They are having a program which takes class 12 student. If you pass their CAT, they have exam named SQL CAT or then renamed it as I said, whatever. So I gave that exam and we got selected. And after I have done an interview also I got selected. I had two choices. One is let's do with ITJ or directly we have a job. Basically, I decided, okay, even after I was doing good in my preparations. I thought I'll get a tier 1 college. But even though I thought at last what I'll do, my goal is not to get into college. I want to do some real life problems. Having a real life experience is much more important according to me. Like even after 4 years I'll have gained much more experience. So for the experience part I joined TechB and first at that time there was COVID. So the training was online for HCL and so I have from my home I had my training which was a really intense training. So the training is really intense. They give you a complete understanding of how a corporate person feels like you have to daily work for 9 hours. Because in school life you don't have that much handling ability, pressure handling ability. मैंने फिर टेक भी ज्वाइन किया when classes खासली rigorous थी and with that we got a great amount of knowledge. I'd say the training was really great. They taught us a lot of things in just 6 months. And then after that, later 6 months is the internship part. So we are excited about that and we got here and then it was offline. So in the internship part, we are retrained on a different technology. So before in that, we were trained on a full stack, but when we joined as an intern, there was need of like data engineers. So they taught us data engineering for a short period. But on this period, there's a project come for website support. So I said, yes, I'll do it as
having a project experience much better than doing just training. So I got that, and that project I worked for some time. Yeah, and after that, like my internship was over, I converted into a full-time employee. So that's how I got in this job. Yeah. So after you joined this, how long was the training? Was it 1 year training? Yeah, the training was of 1 year divided into two parts. First part is the CRT, which is classroom training, which was online at that time. Now it's Okay. offline. And the other part, OGT, which is the hands-on training, which is offline internship. So how long was that? 1 year, 6 months. How long 1 was year. that? 1 year. Yeah. Okay. And then after that, 6 months of internship. And after internship, you can join any college. HCL has partnered with multiple colleges. Now I think it's 5 to 6 college. From an IIM to triple IT, it have multiple colleges partnered with HCL. So you can join any of those colleges. Oh, wow. Yeah. Without any entrance exam Like and all, even right? they partnered with India's fourth highest engineering college, Bates Plani. They are also partnered with that, so you can directly Like, get into that. But it's not for engineering. You can do but not BTech, because BTech Mhm. is not allowed to from distance in India. So you can do MTech, and then that's how it Okay. is. Okay. And you're doing Yeah. computer application. Yeah, I'm doing computer application bachelor's. Right. Yeah, but what I feel after talking to my seniors here, that once you get into an IT sector, the college doesn't matter that much compared to a networking and your skill. So getting the Mhm. first job at that time, college have a big role, but after that, I think it's more your skills, network on getting the second job or third job. Yeah. Amazing. So if anybody want to join Yeah. this program, STL ka program, so what do they need to do? How do they find out more detail about it, and how do they prepare for it? So firstly, the name of the program is HCL Tech B. You can search you have exams, like you can register and you will have exam in 1 week or 2 weeks, Mhm. and then they evaluate you. If you have good enough marks and then pass the interview, you will be able to join for the CRT. And in CRT, there's a exam. If you pass that, you will be converted into a employee. Nice. Okay. Right. Thank you for sharing that. That will be very useful for many people. During the internship, is there anything that helped you converting that internship into a full-time job? Actually, the exam was before the internship. It was after the CRT. So the exam is really tough, because in 6 months you will be having a bundle of knowledge. So the best thing which worked out for me is building a good group of guys in just 6 months. So I associated with myself the brightest mind in that training. It's So if you just have it, okay. and like we were talking with some technology, some guys have knowledge in this, some have knowledge in the other thing. That helps a lot. They will, if you don't know something, they will. If you know something, you will teach them. Peer learning helped a lot to passing that exams. Mhm. And also networking, talking to seniors, like which type of questions came, which part we have to especially prepare for. These two things Okay. helps a lot to in that. एंड ये वाला जो एग्जाम की बात हाँ। कर रहे हैं वो पहला 6 मंथ की ट्रेनिंग, बाद। उसके बाद हैंड्स ऑन, इसके बाद होता है वो एग्जाम? वो पहले 6 मंथ जस्ट Okay. बाद होती है, एंड देन आफ्टर ओजीटी इट्स मोर और लेस confirmed to be converted into an employee, and you do some disciplinary. Okay. Yeah. Okay. Wow, must. And then now you're doing your bachelor degree with distant learning, Yeah. है ना? Right. So काम के साथ में, so मैंने जो सुना है उसके, you do your office का work, Right. and then you do some additional learning, and then on top of that you do this bachelor degree. It तो ये is. bachelor degree कैसे मैनेज? बैचलर्स को जो क्लासेस होता है वो वीकेंड्स पे होते हैं, बट जो करिकुलम है इंडिया का बैचलर्स का, आई थिंक दैट्स नॉट दैट मच एडवांस. इन्होंने जो हमें पहले 6 मंथ्स में ट्रेनिंग दी है, तो जो उनका टेक्निकल पार्ट वो एटलीस्ट इन्हीं 6 मंथ्स में हमने ऑलरेडी एक बार कवर कर रखा होता है. तो कॉलेज के लिए वो रिविजन होता है. एंड जो अदर स्किल्स होती है, सबसे बेस्ट चीज जिस पे हमें ट्रेन किया जाता है, दैट वाज कम्युनिकेशंस इन दिस ट्रेनिंग पीरियड.
हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कराई जाती है इन दिस ट्रेनिंग। जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी सिखाया जाता है बैचलर में, तो वो भी कवर हो ही चुका होता है। जो अदर पार्ट्स हो गए, एक दो एक्स्ट्रा हाँ। सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक साइकोलॉजी, एक दो, तो वो आप थोड़े टाइम में कर सकते हो। आई थिंक डूइंग, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट गिव 4 days 3 days, it's sufficient to pass those exams. ओके। एंड लास्ट में एक और चीज ऐड करते हैं इसमें। यू वाज टेलिंग मी वंस कि एससीएल ने ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया, आइडिया बिहाइंड इट, कि कॉलेज करने से अच्छा ये करना क्यों। So what I feel is not their point of view, maybe, but what I feel is that the हाँ, quality of हमारा graduates is not that great. You have to train them for the job. Anyhow, even if students coming from any college, all the IT firms, I believe, have to train them for at least 3 to 6 months. And so, why can't you do that for just 12th pass? I think that was the idea. And having 12th pass students, I also feel they have much more hunger than graduate, because 12th pass students, what I have seen around me, have more hunger to do good in job. They take it as like more. How can I articulate this? According to me, they show much more hunger than compared to graduates, and it's also beneficial for them as on the economical sense, as they are a little cheaper than compared to this. It makes sense to double down on 12th pass students also. जाता है ना काम right. वाला। वर्सेस कॉलेज में है हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, कैसे काम होगा, Exactly. कैसा क्लाइंट होगा, कैसे किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे ना, Right. तो वो चेंज You are not doing some useless assignments which have not any implications. You all are doing some real time, real things. Yeah. So that's how it is. कूल, दैट्स अमेजिंग। सो हमने बहुत कुछ कवर किया है लास्ट 30-40 मिनट Right. में, है ना। एक और टॉपिक पर है AWS सर्टिफिकेशन का, जो हम दोनों ने साथ में Right. काम किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कोई पोस्ट था जिसमें कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सारा लोग बता रहे थे, यू सेड कि 1 वीक में कर मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर हम दोनों ने फ़ोन पे, इट वाज ऑल वी फ्रॉम टू लाइक विद इन अ वीक हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को, Right. और कमेंट पे बात किया, फिर डीएम पे बात किया, फिर हमने फ़ोन नंबर Right. शेयर किए, फिर हमने व्हाट्सएप पे कॉल किया, and we decided to come up with this guide that has resources, week by week plan और day by day plan और पूरा एक्शन स्टेप। फिर उसके बाद में वो ग्रुप बनाया हम ट्विटर का, कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाया, वहाँ पे ये पीडीएफ पूरा शेयर किया, पीडीएफ बना के। उस कम्युनिटी में अभी 600-700 लोग हैं, पता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स मेक समथिंग। एंड उस समय तो मैंने ये भी प्लान कर लिया था कि मैं भी कर लूंगा, बट Yeah. वो काफी सारा ऑफिस और बट प्रॉमिस है कि एक दिन करूंगा। तो एक बार उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक यू प्रिटी कन्विंस कि अगर कोई बंदा ढंग से मेहनत कर ले या ढंग से उस पर फोकस कर ले तो 1 वीक में निकाल सकता। तो एक बार अपने मुंह से वही सब चीजें कि क्या क्या लगता है, व्हाट्स यू। Cloud practitioner, that's the most basic certification they provide in the field of cloud, AWS. So मैंने ये सर्टिफिकेशन खुद ही आई थिंक 4 to 5 days में किया था। आई एम कन्विंस्ड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। एंड मैंने वो 4-5 दिन में भी हल्का फुल्का लाइक ओके ये टॉपिक्स कल करेंगे ऐसे करके मैंने किया था। Still, I was confident because if you search on internet, you will find out this type of questions come, and I was able to do good on those questions, क्योंकि ये तो आता है, मुझे ये आता है। बेसिकली इनका जो पहला टेस्ट है वो तुम्हारे क्लाउड के लाइक सर्विसेज पे टेस्ट करता है। हाउ मच, विच सर्विस टू यू यूज, विच सर्विस डू व्हाट। You don't need to know how to use that service. You need to know what that service does. तो बेसिकली सर्विस रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कोई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, यहाँ पे क्लाउड में चीजें ऐसे काम करती है, क्लाउड का बेनिफिट क्या है, वाई मूविंग फ्रॉम लाइक नॉर्मल सर्वर्स टू क्लाउड हेल्प, और इवन हाइब्रिड, हाउ इट हेल्प्स, हाउ इट सेव्स मनी एंड ऑल दैट। सो it takes more understanding on that part. So I think it's not a very big deal to do that. Even the guide we have followed, we made it for 4 weeks. So even if someone have less time, we can do that. But if you just go through it or read the steps I have mentioned in there, you'll get to know a lot. Like
in very short time of period. You just follow Exactly. any course and you'll do it pretty easily. हाँ, लोग सोचते रह जाते हैं। मैं वही बोला कि चलो 1 वीक नहीं भी किया तो 4 वीक में तो आप 1 महीने के अंदर कर सकते हो फिनिश। और लेट्स से ये तो बहुत बेसिक सर्टिफिकेशन है ना, तो ये सर्टिफिकेशन करने का जो आइडिया है कि आप ये सर्टिफिकेशन कर लो, एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा। एंड देन ऑल्सो अगर वो अच्छा लगे देन यू कैन डू अदर सर्टिफिकेशन, उसमें और ज़्यादा कर सकते हो। तो ये एंट्री पॉइंट है, 1 हफ्ते में Right. कर And सकते हो। even ये भले ही basic certification है, but in the sense of employers or clients, you have knowledge of cloud. You just have basic knowledge, but you have knowledge of cloud. That's accepted. That's if your colleagues don't have and you have, and there's the opportunity, you will get the opportunity in cloud. Because even if it's good for you, because you have a knowledge of हाँ, another domain, so it helps you on like having a overall sight of things. So yeah, it helps a lot on. आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे। इट्स कम्प्लीटली फ्री, हमने तो बनाया था। आई होप वो लोग यूज़ करें उसके बारे में। उसमें सब कुछ है। क्या वो सर्टिफिकेशन है, उसमें रिसोर्सेज क्या है, Most asked क्वेश्चंस किस questions, तरह के आते हैं, like quick डे टू notes, डे प्लान भी है। everything. Even if you just go through it, I have covered at least. I can say with guarantee that 90% questions will come from that. 90%, and you need just to score, I think 70 or 80. So which is pretty easy. मैं वापस एक्साइटेड हो गया। चलो यार इसको कर देता हूँ अभी वापस। देखते हैं 2-4 घंटे में फिर निकल जाएगा वेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे सेगमेंट पे। विशाल आज से 3 से 5 साल के बाद में कहाँ पर होगा? Firstly, I think I'll be on any remote job. I think because that's more flexible, and I'll be solving some good problems. Some good complex problems. I'll be solving those for, I think, good companies. विशाल को दुनिया घूमनी है या वो देश में ही रहना है? Like I'm still thinking. I think I should go out, but like you have family, relatives, so that's bond is also there. I don't know what I'll do, but I think I'll visit countries for sure because it will give you more cultural understanding and assignment. a lot of knowledge comes from just visiting other countries. I think like how those people works, you will learn a lot of things from traveling for sure. हाँ, ये तो है, एंड देन कंपनी सेंड फॉर स्मॉल असाइनमेंट Right. के, तो Yeah. मैंने इज गुड इनफ टाइम वो कंट्री में अच्छे से घूम भी सकते हो, काम भी कर Yeah. सकते हो, देख सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। I think I'll do that before 30s. I'll think I'll move around a lot and then I'll come back to India. ये कोई गर्लफ्रेंड या शादी वादी का क्या चल रहा है? अभी तो टाइम नहीं होता तो I stay away from these things because अभी I think I'll focusing a lot on my career, so I don't get much time. But I'll see it maybe after 3 to 4 years when I think I have more. हाँ, वैसे भी ऐसा उम्र ही क्या है? Yeah, I'm just 21. So I have यू 21, आई थॉट 23। 21 के? just 21. ओके। हाँ यार, की बात सीधे करने लग गए ना, Right. तो राइट। एंड तुम्हारा अभी ग्रेजुएशन कब हो जाएगा? In बैचलर डिग्री next कब हो 2 जाएगा? years, maybe 2027. Yeah, next 2 years. Yeah. By God, by the time you finish your graduation, you will already have 3-4 साल का Right. एक्सपीरियंस। मस्त है यार। लोग तो वो करने के बाद जॉब ढूंढते हैं और फिर कुछ शुरू करते हैं, राइट? तुम्हारा तो उस समय already 4 साल And का also, I think एक्सपीरियंस होगा। getting the first 2 job is much tougher than switching and all that. हाँ। Of course. गुड यार, थिंग्स हैज वर्कड आउट फॉर यू। Yeah. और जो अगर का मुझे कोर पूरे इस सेशन का है ना, एक तुम्हारा जॉब तुमने choose Right. किया है, वो भी तुमको तुम्हारे नेटवर्क से पता लगा कि इंक्लूड किया, सो यू डन वेरी वेल देयर। काफ़ी यूटिलाइज भी किया उसको, और ग्रेट एडवाइस। तो मुझे ये पूछना है अभी कि इतने पूरे सेशन में, बट इज देयर एनीथिंग जो मैंने पूछा नहीं बट यू थिंक कि वैल्यूएबल होगा आंसर करने के लिए? ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैंने नहीं पूछा बट यू वुड लाइक टू आंसर? Something that we haven't talked about to answer. Mm, I don't think so. Right. Have it right on my mind. Yeah.
ठीक है, कोई नहीं। और दूसरा ये कि मेरे लिए कोई क्वेश्चन है? कौन सो मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए ये इतना लंबा करियर है, इफ यू सी अ पर्सन लाइक यू हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ही विल डू गुड और बैड, व्हिच मैट्रिक्स यू जज ओके ही विल डू गुड? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ senior managers, they have keen eye for talent. I want to know how you pick talents very easily compared to someone like us. आई थिंक बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, हाँ, और कोई एक पर्टिकुलर चीज हो ऐसा नहीं ओके, है। अलग अलग लोगों में हाँ, अलग अलग चीजें रहती है और वो होता है। तुम टेक्नोलॉजी देखने के बजाय वो प्रॉब्लम क्या है और उसमें क्या सोल्यूशन चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी को बीच में लाए वो देखते हो, राइट? या अगर आप बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोड ही नहीं चल रहा, सब कुछ करके देख लिया बट कोड नहीं या चल रहा है ना। किसी भलते बंदे ने कोड लिखा था और वो टी पे चला गया राइट, और मजे कर और आपको वो काम असाइन कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आती, राइट? एग्जैक्टली, उस समय आप कैसे रिएक्ट करते हो, ओके, वो एटीट्यूड आपका है। तो वो उस समय जब थिंग्स पॉजिटिव है, सब कुछ सही चल रहा है, तब आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो। जब नहीं चीजें सही चल रही तब आप किस तरीके से चीज को देख रहे हो। वो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड का जो पॉइंट आता है, कैसे दुनिया को देख रहे हो, कैसे समझ सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगर मैं बोलूं तो आपका जो बहुत फाउंडेशन जो है ना, वो आपके गोल्स और आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, वो कितना क्लियर है। एंड यू आर somebody who said this thing important and urgent। राइट, फिर वहां पे कोई फायर आ गई, कोई मैनेजर ने कुछ ये बोल दिया, कोई आके बात करने लग गया, उनका दिन ऐसे ही चल रहा है। उनको सेंस ही नहीं है कि भाई ये जो आप कर रहे हो उसके अंदर आप इंटेंशनली डिसाइड कर सकते हो कि आज से 2 साल बाद या 2 महीने बाद ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वो इंपॉर्टेंट, राइट? और उस पे कितना ध्यान देना है, हाउ टू डिवाइड द डे इनटू एफर्ट। राइट, तो अभी जैसे अपना मैं विजय आई सी सम बिट्स ऑफ दैट उनका इंटरव्यू, एपिसोड रिकॉर्ड। आई सी दैट, ओके ओके गुड। वो उसमें ना एक चीज था, मैंने पूछा कि एक मैनेज उनका स्ट्रैटेजी, या टैक्टिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, नहीं सॉरी पीपल, पीपल और स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स एंड पीपल। सो स्ट्रैटेजी में कि कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो, चीजों को देख रहे हो, आगे का कैसे सिस्टम बना रहे हो। टैक्टिक्स में डे टू डे कैसे कर रहे हो, और उसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आता है, सब कुछ रहता है। एंड देन पीपल, सो उसमें जो फर्स्ट की जो 2 चीजें हैं ना, वो सब पे अप्लाई करती है ना। तो वो चीजें मुझे लगता है, तो टू आंसर योर क्वेश्चन, टैलेंट उस तरीके से देखते हैं आप। जहाँ तक एज ए प्रोग्रामर यू हैव टू नो योर फाउंडेशन, राइट, कोडिंग और लर्निंग, राइट, और ग्रास्पिंग पावर, वो सब तो है ही। बट सिर्फ उसके बेस पे आप बहुत आगे नहीं जा सकते। आप हमने जो ये जो बाकी चीजें बात की, एटीट्यूड की बात की, है ना, अडॉप्टेबिलिटी की बात की, या फिर अपन कैसे अपने टीम मेंबर के साथ ग्रेट, ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम। हाँ सो मेरे को ये हाँ जानना है कि लाइक आपने इंडिया में रहते, आप शायद मुंबई में थे या नोएडा, आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, नोएडा नोएडा में था। एग्जैक्टली, जब मूव किया एंड लाइक अ डिफरेंट कल्चर, हाँ, सब एवरीथिंग वाज डिफरेंट, सो हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम? या मेरा ना सबसे पहला वो बता तो मैं पटनी कंप्यूटर में था, नोएडा हाँ, में। मेरा बेटा 2 साल का था ऑलराइट, उस समय, 2 या 2.5 साल का था, 2 साल का था जब मैं गया उधर। हाँ एग्जैक्टली 2 साल का था जब मैं यहाँ आया। मैं यूएस लैंड किया हूँ, अपने होटल पहुंचा हूँ, और मुझे इतना अजीब सा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली से इतनी दूर आ गया और सब पीछे है। अभी क्यों मैं आया, क्यों रहना है यहाँ पे, एंड ऑल दैट। सो वो बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। दूसरा सबसे बड़ा मेरे लिए इम्पैक्ट था कि यहाँ पर जिस सिटी में मैं आया था, एटलीस्ट केंटकी में, वहाँ पे आपके पास गाड़ी होना बहुत जरूरी। देन आई वॉज मैरिड, फैमिली आएगी तो फिर कैसे वो सब मैनेज होगा। तो वो सारी चीज, ये बड़े बड़े इम्पैक्ट ऐसे आ रहे थे, राइट, कि इंडिया में तो गाड़ी के बारे में नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, राइट, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है। तो वो एक बड़ा था। मैं वेजिटेरियन हूँ, कंप्लीट वेजिटेरियन हूँ।
तो हमारे लिए वो एक दूसरी चीज हो गई कि वेजिटेरियन के ऑप्शन बहुत कम है, एंड एवरीबडी वाज यार अमेरिका जा रहे हो तो फिर कैसे मेंटेन Right. कर पाओगे वेजिटेरियन, हम करके रख पाए, अभी तो ज़्यादा ऑप्शन ऑलरेडी हो गए। सो वो एक अलग कल्चर इम्पैक्ट था। एंड थर्ड, ऑफिस में यहाँ पर मैं फिडेलिटी मेरा क्लाइंट Hmm. था, 5 बजे लोग घर जाना शुरू कर देते। Exactly. तो मेरा पहला हफ्ता, राइट, माय फर्स्ट वीक, पहला दिन लोग 5 बजे जाने लग गए, मुझे ना चाय में पीने के लिए ब्रेक ले रहे होंगे। एंड अगेन मेरे साथ पटनी वाले ने, चलो बैग वैग, मैं अभी इसके साथ निकल रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा कॉन्शियस आ रहा है कि मैं हाफ डे बंक करके जा रहा हूँ। Exactly. नोएडा में जब मैं पटनी कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ ना, मुझे 8, 7, 8, कई बार तो 10 बहुत नॉर्मल Perfectly था। normal. और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ 5 बजे, ऐसा अंदर से गिल्टी आ रहा है कि यार मैं चोरी कर रहा हूँ, Yeah, it happens. बंक कर रहा हूँ। Uh, एंड देन फिर बाद में मेरे दोस्त साथ वालों ने ही बताया कि भाई यहाँ अगर तुम ज्यादा काम करोगे, मतलब hmm. यहाँ ज्यादा 6 बजे तक रुकोगे या लेट रुकोगे, तो जो बाकी लोग हैं Hmm. वो फिर ऐसा समझेंगे कि तुम यहाँ का कल काट रहे हो, Hmm. है ना। तुम एम्प्लॉयर को 8 घंटे देने थे, वो तुमने दे दिए, Right. अब तुम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट Right. करोगे अगर ज्यादा दिन रुकोगे, तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये तो एकदम ही Hmm. अलग ही है ना। तो फिर मैं धीरे धीरे अडॉप्ट हुआ उस बात से। Yeah, I have also experienced like तो ये clients था। है जितने भी प्रोजेक्ट में देखा है आफ्टर रूम के अंदर जैसे 5 बजते हैं दे जस्ट शट डाउन। मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल अलग लाइक हम लोग कभी ऐसे ही आराम से काम वाम हो गया फिर भी हम ऑफिस में रुक जाते हैं 7-8 बजे है डिफरेंस। कैंडी कर रहे हैं, राइट, हम लोग, बट वो लोग इतने पर्टिकुलर, आई एम श्योर शी विल बी ओके इफ आई यूज हर नेम, बट उसका वर्क एथिक इतना अच्छा है ना कि अगर उसने 40 घंटे उसके हिसाब से, लाइक उन उसके माइंडसेट में अगर उसने फॉर वट एवर रीजन इनफ टाइम पुट नहीं किया है, तो वो लेट रुक के फिनिश करेगी। Okay. उसको क्लैरिटी चाहिए खुद के लिए हम्म, कि उसने 40 घंटे का प्रोडक्टिव काम किया है। और मैं बोलता हूँ अगर मैं 40 घंटे का प्रोडक्टिव काम करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट 50 घंटे तो काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इधर Right. उधर डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बीच में जाके कुछ अपना पर्सनल ईमेल भी चेक, राइट, कुछ ना कुछ तो चलता ही Yeah. रहता है। बट वो लोग, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पर्टिकुलर है इस मामले में, ये तो है। उनका बनता भी है ये 5 फिर तो बजे जाना। बनता है इफ यू लाइक जस्ट टू वर्क टू 8 आवर्स रेगुलरली देन यू ऑफ कोर्स। हाँ। ये तो डिफरेंस अच्छा खासा है। ये हमारे यहाँ होता है जैसे बीच में चाय पीने चले गए ये तो बहुत ही होता है हाँ, चाय पीने जा रहे हैं सिर्फ। चाय का तो यार, चाय कल्चर तो हमने हमारी कंपनी में भी डाल दिया। राइट। अभी तो खैर अब वर्क एट होम कर रहे हैं, बट जहाँ पे मैं काम करता हूँ और दिन के 2-3 बजे जो चाय का वो होता है ना मशीन, पास में काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चाय इम्पोर्टेंट। हाँ, चाय पॉलिटिक्स भी चलती है, चाय चाय की बातें भी चलती है, सब सब यही सब मिल रहे हैं वाटर वहीं कूलर पे कन्वर्सेशन। आराम हाँ से। ये तो हाँ इम्पोर्टेंट है। ओके सो मेरे एक आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। सम डेज होता है हाँ, जैसे बोलो। आप जाते हो सोते हो तो आपको फील होता है हाँ आज कुछ अच्छा किया है कुछ सेटिस्फैक्शन आती है अंदर से। वो डेज आपके लिए कौन से होते हैं कैसे हो? हाँ। ऑफिस में मेरा एक्साइटमेंट तब होता है जब कोई बड़ा गो लाइव हो रहा हो, या कोई अच्छा मीटिंग कभी अच्छा हो जाता है, या कोई ऐसा चीज जो कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आने वाले हैं राइट। उसके, और वो थ्रू आउट द लाइफ चेंज होता रहा, राइट। जब मैं प्रोग्रामर था तब कल अलग होता था, फिर मैनेजर बना तो अलग हुआ, फिर अभी मैं सीनियर मैनेजर हूँ और काफ़ी अलग अलग तरीके के काम कर रहा हूँ। तो उसमें अम, अगर मैं कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ ना, या मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ कि हमारे 5 टीम के अंदर आई एम द फिल इन द गैप, है राइट। ना। फिल इन द गैप, अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई मिसिंग है तो मैं वहाँ पे अगर कंट्रीब्यूट कर पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर कोई बंदा मिसिंग है, राइट, हमारी टीम को कुछ करना है बट देयर इज अ ब्लॉकर दैट डिपेंड्स ऑन अनदर टीम, एंड मैं अगर वो बंदे को फाइंड करके कि कौन सा बंदा है और उस बंदे को ब्रिंग करके उस टीम को दे पाता हूँ,
है ना, वो कनेक्शन बना पाता हूँ, तो वो सिचुएशन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आजकल मैं बहुत सारे प्रेजेंटेशन देना, तो जब कोई अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है तो फिर वो दिन भी ऐसा रहता है। एक प्रेजेंटेशन दिया था मैंने 150 लोगों को, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था पहले, पर अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने सीनियर लीडर्स को दिया, वो भी अच्छा हुआ। तो ये मेरा फुल टाइम वर्क कह रहा हूँ, है या ना। अम, एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती, कुछ एक टीम मेंबर्स है जिनके करियर में पाया, लाइक मेंटरशिप वगैरह से, तो वो दिन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसमें पिछले 2-3 सालों से मैं राइटिंग में जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एकदम बिगिनर के, कि जैसे आज से 20-25 साल पहले मैंने जॉब शुरू किया था ना आईटी में, तो कैसे बिगिनर माइंडसेट रहता है, वैसे ही शुरू किया। और अभी कैसे कि कोई अगर अच्छा कुछ आर्टिकल में लिख दूं जो मुझे अच्छा लगे, भले उसके कितने व्यू आ रहे हैं नहीं आ रहे, फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ऐसा लगता ना कि हाँ, इसमें एक अच्छी थॉट प्रोसेस है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, तो मुझे उस दिन रात को बहुत अच्छी नींद आती, बहुत अच्छा, एकदम अकम्प्लिश फील करता हूँ। अभी गाइड रिलीज किया तो सेम ऑन सेम थॉट, और ऑब्वियसली फैमिली से रिलेटेड तो है ही अलग मोमेंट्स, बट ये सो आई विजिटेड साइट, उसमें शायद आपने कहीं लिखा था कि मेंटर्स को अगर आप वो जो सेशन देते हो उसका देते हो कि हाँ ये मैंने किया, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। आप क्यों ड्यू हाँ हाँ, वही देख के मैंने वो मेल, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट। तो शायद आपका आई थिंक वाओ नींद वाओ, यही होता है यार। अपन कई बार क्या चीज बनाते हैं ना, एंड वो किस तरह, किस डिफरेंट वेज में किसको कैसे इफेक्ट कर जाए और या क्या बेनिफिट मिल जाए, आप नेवर नो। राइट। तो थैंक यू, एंड आज तो आएगी अच्छी नींद इवन आएगी। आपके साथ जो मैंने वो वाला शेयर किया था ना लिंक्डइन पे बना के, उसके भी जगह मुझे लिंक्डइन पे कहते यार थैंक यू, पास में सर्टिफिकेट दैट हेल्प, वो हाँ, आता है तो वो भी अच्छा किसने भेजा था? मुझे आते हैं लिंक्डइन पे हाँ, डीएम्स उसके रिलेटेड। तो हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि कंटेंट क्रिएट करूँ, बट हर बाइट ब्लॉक हो लाइक एडिटिंग। फर्स्ट यू हैव टू हैव अ गुड इनफ लैपटॉप टू एडिट, एंड देन another skill you हम्म, need to learn. we will bloggers फेस करो, बट तुमको जब भी ना, मैं तुमको पूरा कैसे शुरुआत करनी बता दूंगा। एंड माइंडसेट ऐसा लेके आना, पहले 6 महीने में कोई उसको रीड नहीं करने वाला, कोई उसको देखने वाला नहीं, तुम लिखोगे सिर्फ अपने मैंने लिए, मैंने वैसे माइंडसेट से आना। किसी सुना था, कोई बढ़िया कंटेंट उसकी बात मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा था कि लाइक अगर तुम यूट्यूब शुरू कर रहे हो तो अंटिल योर 70th वीडियो, 70 वीडियो, डोंट थिंक आपके व्यूज हाँ के कुछ मत सोचो, जस्ट हाँ क्रिएट, आप बंदे क्रिएट हाँ, करो। एंड आई लाइक दैट एग्जैक्टली, सो मच। या इट्स गुड थिंग, आई लव टू तो कनेक्ट जब भी विद ऑन शुरू दैट। करना है मैं बता देना, मेरा तरीका एकदम वैसा है मैं आपसे एक बार सोचा था कनेक्ट कि करूँ, फिर सोचा कि अपना डेली लाइफ में बिजी हो गया, बट आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा तरीका वही है कि आप अपना एफर्ट डालो, स्टेप्स लो, एंड देन उसके जो रहेंगे। राइट, पहला जो 6 महीना है वो सिर्फ इसलिए लिखो कि ये देखने के लिए कि यार लिखना अपने को पसंद भी आएगा या नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे अपन प्रोग्रामिंग और फ्रेमवर्क सब यूज करते हैं ना विशाल, राइट, राइटिंग भी एग्जैक्टली वो है। जस्ट अपन जैसे थोड़ा सा डीप जाते हैं ना, तो उसके बाद वो सब चीजें काम करती है। सो या, आई कनेक्ट तो विद यू इसके रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, आई मैं थिंक बोलो तो मैं तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप एक गाइड ये भी बना के देता हूँ। आराम से कॉल पे बात करने की कि ये ठीक है, कंटेंट, बिकॉज आई एम थिंकिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ठीक है, और अभी तक कर नहीं पाया हूँ, मिस क्यूट ड्यू टू सम ब्लॉकर्स। सॉफ्टवेयर। विंटर वो जो ऑलरेडी कर रहा हूँ तो इट हेल्प्स अ लॉट। बहुत सारी रॉन्ग स्टेप्स बच जाती हाँ हैं जो आप जाने वाले हो तो आप वो नहीं हम्म, करते हो, डिफरेंस बहुत हाँ, पता है मैंने। ऑलराइट। कूल। सो अपन अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हाँ, हैं, जो everything that has worked out for you, everything that you have seen in last 2 years in HCL, और जो भी आइडिया है, मतलब वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है, राइट। सो बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट यू नो, अगर जो ऑडियंस है उनके लिए एक मैसेज देना है तो क्या मैसेज दोगे? फर्स्टली एसोसिएट योरसेल्फ विद गुड पीपल। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगती है कि आप अपने आसपास सर्कल ऐसा रखो, एंड
दैट्स अंडर योर कंट्रोल। वन ऑफ थिंग आपकी लाइफ में कुछ भी कैसा हम्म, चल रहा है, दिस थिंग इज अंडर योर कंट्रोल कि आप अपने अंदर सर्कल अच्छा रखो। आप जिसके साथ बैठ रहे हो, जितना टाइम स्पेंड करो, आई थिंक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी छोटी मोटी आदतों से लेकर बहुत yeah, चीजों पे। दैट्स द फर्स्ट। सेकंड इज नेटवर्क। आई थिंक डू these two things and it will work out with for you. हम्म। It will work out. Yeah, that's all. विशाल, आई नो यू सेड कि ऑफिस के बीच में एससीएल के अंदर तुमने बहुत अच्छे नेटवर्क बनाए हैं, उसके बाहर का नेटवर्क कैसे बनाते हो, या This उस पे thing, ध्यान देते हो? like लिंक्डइन है for या ऐसा now कोई? मैं रुका हुआ हूँ इस चीज पे। I for now I like I only already I think having my bandwidth, but I am planning from like content creation. Once I start to creating content, I think वो बाहर वाले अपने आप बनते लगते लोग। आप किसी को हेल्प करते हो, कोई आपकी हेल्प करता है, एंड आई थिंक वो जेन्युइन वाले जो हम्म, कनेक्ट्स, वो मेरे हिसाब से बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप किसी को बातचीत भी करो, बट अगर वो जेन्युइन है, आई डोंट थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। सो अगर आप हाँ, किसी को हेल्प करते हो, कोई आपकी हेल्प करते हैं, एंड दे आल्सो फील गुड व्हाइल हेल्पिंग, आई थिंक हाँ, हैविंग दोस हाँ। बॉन्ड्स हेल्प्स अ लॉट। सो आई एम थिंकिंग लाइक वन। ये बात तो है, हाँ, हम लोग भी वैसे ही मिले। हाँ, ऑफ कोर्स वी हैव अ गुड बॉन्ड। तो ये चीज है, हाँ, राइट। ग्रेट। यार मजा आ गया इस क्या कहा एपिसोड में, था? पूरा मजा आ गया। ये एपिसोड पहला एपिसोड है जिसमें मैंने हिंदी भी मैंने राइट। यूज किया, so it was I also feel great बहुत मजा आया। just talking to you. ठीक है विशाल, थैंक यू Sure. सो मच।